Dear students of BSc first year, first semester, let's start mechanism of organic reactions. So first of all, we should discuss about what is the reactions. So chemical reactions is a process by which one type of substance is converted into another type of substances, and this transformation occurs due to breaking of old bond and formation of new bonds. But we discuss about the mechanism of organic reactions, so we should understood about what is the organic reactions. The reactions which proceeds in organic compounds, and as you know that organic compounds are made up by covalent bond. The covalent bond is formed due to mutual sharing of electrons. So first of all, our topic is types of organic reactions. There are four types of organic reactions. First, substitution reaction. Second, addition reaction. Substitution reaction. Addition reaction. Third, elimination reaction. Elimination reaction. And fourth is rearrangement reaction. Rearrangement reactions. These four type of organic reactions. First of all, we should discuss about the substitution reaction. What is the substitution reactions? As you know, it means substitute to others. एक को हटा करके और दूसरे का रिप्लेसमेंट. एक एटम को रिप्लेस करना है, दूसरे को ऐड करना है. अब ये रिप्लेसिंग किसके द्वारा होगा, इसको हमको आपको देखना है. उनकी बैलेंसी सेम होनी चाहिए, जिसको हम सेम बैलेंसी के आधार पर इसको हम हटा सकते हैं. तो हमको इसको कहना होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज which proceeds by replacement of one atom with another atoms. So first of all, you should note down the definition of substitution reactions. कि when a reactant A single bond B reacts with C to form AC compound, and B carries out as leaving groups. That is, C has taken place of V, or in other words, C has substituted B. Such reactions are known as substitution reactions. For example, जो हमने आपको बताया ये A और B है,
इसके साथ सी ने रिएक्ट किया और यहां बन गया AC और B हो गया आपका लीविंग ग्रुप। सी को हम लोग लीविंग ग्रुप कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में है कि आपने देखा कि मीथेन ये होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। जैसे आपका सैचुरेटेड है CH4 Cl2, यहां पर एक H को एक Cl सब्स्टिट्यूट करेगा। किस तरह से हम दिखा सकते हैं? H3CH प्लस Cl। अब H को Cl रिप्लेस कर देगा और इधर हो जाएगा आपका CH3Cl प्लस HCl। ये पूरी चेन चलती जाएगी कि CH3Cl फिर Cl2 से करके रिएक्शन और HH को सब्स्टिट्यूट करता हुआ चला जाएगा। जैसे CH3Cl प्लस Cl2, CH2Cl2 प्लस HCl, CH2Cl2 प्लस Cl2 एरो CHCl3 plus HCl. In the same way, CHCl3 Cl2 arrow CCl4 plus HCl. हम आप देख सकते हैं कि यहां पर H को Cl ने रिप्लेस किया। अब यहां आप देखिएगा एक Cl लीविंग ग्रुप, H लीविंग ग्रुप, ये दोनों कंबाइंड होकर के HCl बनाते चले गए और लास्ट प्रोडक्ट CCl4 है, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन के चांसेस नहीं रहेंगे। ये आपका एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम आप अब सेकेंड टॉपिक पर भी आ जाएं, जिसको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस में हम कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन में जहां हम एक को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, वही एडिशन में हम सब्स्टिट्यूट ना करके ऐड करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर अकर्ड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बट addition reactions can take place in unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are those in which all valencies of carbons are satisfied with hydrogen or another atoms, while unsaturated hydrocarbons are those in which all valencies of carbons are not satisfied with hydrogen or other group or atoms. Then you can note down about the addition reactions. लिखिए addition reactions when two molecules of same or different substances combine together, giving rise to a new product. It is a addition reaction. For example, कोई भी एग्जाम्पल आप अनसैचुरेटेड का ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप अनसैचुरेटेड का ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया एथिलीन। एथिलीन को आपने लिया और यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो हमने ले लिया Br2। ध्यान से देखिएगा, यहां एडिशन होगा क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है। एक Br इस पर, एक Br इस पर अटैक कर जाएगा और ये हो गया H H H H, एक Br यहां, एक Br यहां।
ये रिएक्शंस आपका एक एग्जाम्पल है जिसमें आपने एडिशन ऑफ ग्रुप किया। एडिशन ऑफ ग्रुप आपने एक उदाहरण ले लिया जिसको हम कह सकते हैं CH2Br CH2Br। ये हो गया ORR CH2Br CH2Br। अगर आप नाम देना चाहें तो सीधे होगा एथिलीन डाइब्रोमाइड या होगा 1,2-डाइब्रोमोएथेन। यह हो गया इसका नाम 1,2-डाइब्रोमोएथेन। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि हम ये ले लें HHC डबल बॉन्ड CHH और इसमें आपने दूसरा एक ग्रुप जोड़ दिया HBr। इधर किसी भी साइड में कहीं भी ये बॉन्ड के रोटेशन पर निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस करेगा। आपका ये जुड़ गया H CH3 एक तरफ जुड़ गया, दूसरी तरफ हो गया BrHH जिसको आप कह सकते हो CH3 CH2Br CH3 CH2Br। इसका अगर आपको नाम लिखना है तो आप कह सकते हो एथिल ब्रोमाइड और ब्रोमोएथेन। एथिल ब्रोमाइड कहें या ब्रोमोएथेन कह सकते हैं। ये दो रिएक्शंस हो गए आपके, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरा हो गया आपका एडिशन रिएक्शंस। अब तीसरा रिएक्शंस है जिसको आप डाल दें एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरे का आप डाल दीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन। कुछ करना नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर जस्ट रिवर्स रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन। जहां एडिशन में आपने कहा कि ग्रुप मॉलिक्यूल का या एटम का जुड़ रहा है, वहीं पर यहां पर एलिमिनेट हो रहा है। ऐसा रिएक्शंस जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स एलिमिनेट हो जाए उसको हम लोग कहते हैं। लिखिए, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व दी माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ए ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू दी अदर विदिन द सेम मॉलिक्यूल। or in other words we can say the removal of atoms or group from a molecule to form a new compounds containing multiple bonds. This is the inverse of addition reactions. आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कह सकते हो, चाहे इसको लिख दो तो डिहाइड्रोबोरेशन हो जाएगा, इसको कह दीजिए तो हो जाएगा डीब्रोमिनेशन। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है। केवल काम क्या करना है, एरो को उल्टा कर देना है। एरो को उल्टा ये कर देना है कि यह आपका जो देख रहे हो इधर का पोर्शन ये हो जाएगा CH3 CH2Br और एरो इधर हो गया, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। यहां आपका एथिलीन ये पूरा HBr ग्रुप जुड़ गया, ठीक उल्टा था। यहां अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो रहा था सैचुरेटेड में, यहां सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में। ये जस्ट रिवर्स है। इसके भी तीर को आप
तो केवल इतना करना है कि तीर को बदल दीजिए और ये हो जाएगा डीब्रोमिनेशन रिएक्शन। In the same way, the fourth reaction is called rearrangement reaction. Rearrangement reaction. Rearrangement reaction की बात करें तो इसमें ना कोई चीज जुड़ रही है, ना सब्स्टिट्यूट हो रही है, ना एलिमिनेट हो रही है, बल्कि इसमें जो एटम है वो आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, इसमें जो भी एटम है वो आपस में अदला बदली कर देते हैं और एक नया कंपाउंड आपका तैयार हो जाता है। इसकी भी परिभाषा आप लिख लें। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ए ग्रुप from one atom to the other within the same molecule, within the same molecule. For example, जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपको मिला वो था जो फ्रेडरिक पोलर ने गर्म किया था अमोनियम साइनेट को। गर्म करने पर देखा कि इसके मॉलिक्यूल रीअरेंज हो गए और ये बन गया NH2CONH2, जिसको हम लोग यूरिया कहते हैं। आप देख लीजिएगा सारे मॉलिक्यूल 2N 2N 4H 4H 1C 1C 1O1। इसी तरीके से अगर आप एक एग्जाम्पल ये भी देखें कि ये है C2H5OH। C2H5OH को अगर आप रीअरेंज करा दें तो रीअरेंज में हो जाएगा CH3O CH3, गिन लीजिए 2C H6 1O। जहां पर यह है एथिल अल्कोहल, यह है एथिल अल्कोहल, वही इसका नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर। इस तरह से हम लोग इस चीज को समझ गए कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है क्या। हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैसे समझें, तो आपने समझा कि देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एलिमिनेशन, फोर्थ rearrangement. Substitution occurred in saturated hydrocarbon. Addition occur in unsaturated. Elimination is a reverse of addition, while rearrangements involve the rearrangement of atoms or molecule within the same compounds. अब हम लोगों का जो मुख्य टॉपिक है जिसको हमें जानना है वह है व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर आप बात करते हैं तो जहां ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप, बट ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैन बी कंप्लीटेड in a multiple steps through our reactive intermediates. In organic reactions, reactants do not change directly into products in one step. The change normally takes place via intermediate products, which is short-lived. From the intermediate products, the reaction passes on to the products through reaction intermediates that become across in the study of organic reactions. That is called carbonium, carbanion, free radicals, carbenes, nitrines, benzene, etc. तो
तो अब इसको हमको समझने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सिंपली हम आपको बता दें कि सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के बाद बनेगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट से आपका बनेगा प्रोडक्ट। यह जो हमने बताया रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट में आपको हमने बताया फर्स्ट है फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, सेकेंड कार्बोनियम आयन, थर्ड कार्बेन आयन, कार्बेनायन आयन। कार्बोनियम को हम लोग कार्बोकटायन भी कहते हैं, कार्बोकटायन, कार्बन आयन। इसके अलावा आपको पढ़ना है कार्बीन, नाइट्रीन, ईटीसी। इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। इस रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को हमें जानने के लिए क्या काम करना है? बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड का फिजन, बॉन्ड कैसे टूटेंगे। रिएक्शन तभी होगा जो हमने आपको बताया था कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो बॉन्ड सबस्ट्रेट के भी टूटेंगे, बॉन्ड अटैकिंग रिएजेंट के भी टूटेंगे, फिर दोनों मिलकर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनाएंगे, फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट में बदलेगा। तो अब हमको ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कैसे बनेंगे? ये बनेंगे बाय बॉन्ड ब्रेकिंग, बाय बॉन्ड क्लीवेज या बाय बॉन्ड फिजन। अब आप इसको देखें, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फिजन और बॉन्ड क्लीवेज, bond breaking, bond fission or bond cleavage, and these are of two types. First, homolytic bond fission, homolytic bond fission OR, इसको कहते हैं हम लोग होमोलिसिस। सेकेंड है हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन
OR heterolysis. होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और होमोलिसिस या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिसिस, इन दोनों को समझना है। होमोलिटिक का मतलब होमो मीन्स सेम, समान। यहाँ जहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकिंग समान हो, यहाँ जहाँ बॉन्ड का ब्रेकिंग असमान हो, इसको हमें कैसे समझना है। तो जब हम बात कर देते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की, तो जैसा हम जानते हैं कि ये कोई भी है इसके साथ जुड़ा हुआ CX, हमको ये भी पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बाय म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड से बना है। इनमें हमको इनको तोड़ना है, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन कराना है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है या बराबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, समान है, तो इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह से होगी कि अपने अपने साझे का इलेक्ट्रॉन ले करके ये फ्री हो जाएंगे। अपने अपने साझे का इलेक्ट्रॉन ले करके ये फ्री हो जाएंगे और यह स्थिति बनेगी। और इसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। तो अहम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं कि फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। और ये किसके द्वारा होगा, अगर हमारे पास समान क्लीवेज है तो अब आप नोट कर लें डिफिनीशन, जिसको लिखने के लिए एग्जाम में नंबर लेना है उसके लिए आप नोट करिए। होमोलिटिक फिजन और होमोलिसिस। इन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन द कोवैलेंट बॉन्ड breaks in such a way that each fragment carries one unpaired electron, Homolytic fission or homolysis leads to the formation of very reactive species that is called free radicals. इसको आप किसी भी रूप में दिखा सकते हैं, AB में दिखा दीजिए, CX के रूप में दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक इसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट आप नोट कर लें, जिसको हमने बताया है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिसिस नोट करिए। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज leads to the formation of ionic species. These ionic species are also very reactive and carry charges on carbon species. If positive charges carrying on carbon atom called carbonium or carbocation species, while anionic species or if negative charges carries on carbon atoms, then it is known as carbanion species. In heterolytic fission, the covalent bond breaks in such a way that the pair of electrons stays on more electronegative atom,
आप एग्जाम्पल में यहाँ भी देख लीजिए कि यही सेम स्थिति रहेगी कि C और X है, C और X है। इसको आप देखें हेट्रोलिटिक, ये तो था होमोलिटिक। कहाँ देखिए हेट्रोलिसिस, इसमें आपको इनकी कंपैरिजन करना है। इफ कार्बन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स, या कह सकते हो कि एक्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन के एक्स पर चले आएंगे, और जब एक्स पर चले आएंगे तो कार्बन पर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ये हो गया निगेटिव। हमने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज कैरीज ऑन कार्बन एटम या रिजाइड्स ऑन कार्बन एटम, तो इसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन, OR, कार्बो कटायन, कार्बोनियम आयन और कार्बो कटायन। ठीक इसी तरीके से अगर स्थिति ये बन गई कि कार्बन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्स से, तो ये दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन के घूम के इस पे चले आएंगे। अब स्थिति हुई, यहां भी है हेट्रोलिसिस, और ये कार्बन पर दोनों इलेक्ट्रॉन आने से इस पर चार्ज हो गया निगेटिव और एक्स पर रिजाइड किया पॉजिटिव। इसको कहते हैं हम लोग कार्बेन आयन, कार्बेन आयन, कार्बोनियम आयन या कार्बोकटायन, और यह हो गया कार्बेन आयन। तो तीनों स्पीसीज आपकी बन गई। होमोलिटिक से बना फ्री रेडिकल, और हेट्रोलिटिक के द्वारा बना कार्बोनियम और कार्बेन आयन। ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो आपके रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंध रखते हैं। ये हमने आपको बताया था ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन सबस्ट्रेट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन सबस्ट्रेट। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन अटैकिंग रिएजेंट्स। जिस तरीके से आपने होमोलिटिक में सबस्ट्रेट को किया, ठीक उसी तरीके से हम लोगों को काम करना है। इनके लिए अटैकिंग रिएजेंट तोड़ना है। ये अटैकिंग रिएजेंट का जब बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, अटैकिंग रिएजेंट का भी बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिजन इन अटैकिंग रिएजेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, इन अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट में भी यही सेम आएगा कि अगर होमोलिटिक है, होमोलिटिक है, और कल्पना करिए कि हमने कहा A और B है, साझे का इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक इधर, ये दोनों होमोलिसिस के द्वारा टूट गए, होमोलिसिस हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे A ने अपना और B ने अपना एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन का ले लिया और बन गए फ्री रेडिकल। यह हो गया फ्री रेडिकल। इसी तरीके से इनके भी अगर हेट्रोलिटिक हो गया, हेट्रोलिसिस में, और सेम यही है ए और बी, यहां हम लोग दो तरीके से बांट देंगे। अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो साझे का इलेक्ट्रॉन बी पर चला जाएगा, अगर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है
ए पर निगेटिव हो जाएगा और बी पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज अटैकिंग रिएजेंट्स है, पॉजिटिवली चार्ज्ड अटैकिंग रिएजेंट्स, पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट्स किसके साथ जाएगा? ये जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन हो। जहां पर इलेक्ट्रॉन हो तो ये सीधे इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, या दूसरी भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक यही इसके विपरीत आप देखें तो इसके विपरीत में आपको मिलेगा कि ये जो निगेटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक reagents, ORR, न्यूक्लियोफाइल्स। ध्यान से सुन लीजिएगा, पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, निगेटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स या न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। अब पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है। इसको भी समझने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला इलेक्ट्रॉन को चाहेगा वही जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स को कि डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पर निगेटिवली चार्ज जो है वो न्यूक्लियस को चाहता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। पूरा मैकेनिज्म आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है कि दोनों में होमोलिटिक और दोनों में हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ, जिसको आपने ध्यान से देखा और समझा। अब आपके मैकेनिज्म की बात है कि हमको करना क्या है, प्लस माइनस से और माइनस प्लस से अटैच हो जाए, आपका कंपाउंड बन जाए, आपका काम समाप्त। तो आप ध्यान से देखिए, हमने बताया था यहां होगा सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, यहां बना था रिएक्टिव इंटरमीडिएट और फिर बना प्रोडक्ट। अब इतने से ही आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। अगर इसका फ्री रेडिकल है तो यहां का भी फ्री रेडिकल ही मिलेगा, यहां का फ्री रेडिकल मिलेगा। ध्यान से देखिए, अगर ये C1 है और यहां पर
बी अटैकिंग रिएजेंट का है, ये सीधे बन जाएगा Cb, प्रोडक्ट बन गया। ठीक इसी तरीके से दो तरीके की मैकेनिज्म होती है। एक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसको हमने अभी आपको बता दिया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक हमने बताया। दूसरी है आयनिक मैकेनिज्म। इस आयनिक मैकेनिज्म में अगर फ्री रेडिकल के बजाय ये है कार्बोनियम, जिसको आपने ब्रैकेट में दिखाया C पर पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बोनियम पर पॉजिटिव है तो निश्चित है इधर आपका होगा इलेक्ट्रोफाइल, इधर आपका होगा इलेक्ट्रोफाइल। निश्चित रूप से जान लीजिएगा, सॉरी गलत है, न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस को चाहने वाला होगा। यह होगा न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग दिखाते हैं अक्सर करके इस तरह से, जिस पर आप चार्ज दिखाओगे नेगेटिव। अब आप यहां से देख लीजिए, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसने इसके साझे के और पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके न्यूट्रल हो गए, साझे का बॉन्ड बन गया। तीसरी तरफ अगर ये है कार्बन आयन, जिसको हम कहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, तब इस पर जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जिसको हम लोग, ये भी दो तरीके का होता है, एक न्यूट्रल या पॉजिटिव, ये भी न्यूट्रल या निगेटिव, और इस तरीके से इनके बीच में भी संबंध बन गया। ये टोटल रिएक्शन मैकेनिज्म का शॉर्ट फॉर्म है, इसमें कहीं अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म 4: एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म का आधार कई स्टेप में होना, रिएक्शन कंप्लीटेड थ्रू रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के द्वारा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कौन कौन से? फ्री रेडिकल, कार्बोनियम, कार्बन आयन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बीन, ये सब। देखा कैसे गया कि जब सबस्ट्रेट पर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो पहले रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनेंगे, फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट में बदलेगा। तो हमने सबसे पहले बताया बॉन्ड ब्रेकिंग की, बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड सबस्ट्रेट का टूटा और होमोलिटिक फिजन हुआ तो फ्री रेडिकल बना। हेट्रोलिटिक में कार्बोनियम कार्बन आयन बने। इन द सेम वे अटैकिंग रिएजेंट की ब्रेकिंग में आपने देखा कि होमोलिटिकली ब्रेकिंग पर फ्री रेडिकल्स बने और हेट्रोलिटिकली बॉन्ड फिजन पर आपका न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक बना। पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखते हैं? कार्बोनियम पर पॉजिटिव चार्ज है यानी न्यूक्लियस है, इसलिए उस पर जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो न्यूक्लियोफिलिक होगा। न्यूक्लियोफिलिक की पहचान या तो न्यूट्रल होगा या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। दूसरी तरफ हमने देखा कार्बन आयन। कार्बन आयन पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। इस पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाएगा या इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं तो हमारा पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म का चैप्टर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से है, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको
आखिरी तक, जहाँ तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ के फंडामेंटल रूट के रूप में आपको मजबूती देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। और अगर किसी प्रकार की कोई विसंगति या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट लिख करके या शेयर करके हमसे संपर्क करके पूछिएगा। धन्यवाद।